morning everyone. We are now doing the chapter number 1 and chapter number 2. इसके लिए अलग से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं थी. That's why I am coming directly with this chapter only. So please open India Yearbook and chapter number 1. Starting line you can write in any essay. India is the cradle of the human race, the birthplace of the human speech, the mother of history, the grandmother of legend and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive material in the history of man are treasured up in India only. Now some of the important part. India total area is 32,87,263 square kilometer जो आपको याद रखना है. जो मैं बताऊंगा उतना याद रखना है. Then what is the extent regarding India? The mainland extends between 8 degree 4 to 37 degree 6 north. ये हमारा latitude हो गया और longitude 68 to 97.25. तो अगर देखा जाए approximately we are having 30 degree difference of both longitude and latitude. East and measure about 3214 from north to south between the extreme latitudes and about 2933 km from east to west. तो हमारा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है 3214 और ईस्ट टू वेस्ट 2933. इंडिया इज अ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर. इसका कोड लिख लो BC. पान खाकर MBA करने गया. B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, PA फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान. तो इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है और सबसे कम अफगानिस्तान से. कोड है BC. पान खाकर MBA करने गया. BC पान खाकर MBA करने गया. Then geographical background. Country have a common border with Afghanistan, Pakistan in northwest, China, Bhutan and Nepal to the north, Myanmar in the far east. तो यहाँ पर आपको बॉर्डर देखना होता है. अगर आप जम्मू कश्मीर एटलस खोल लीजिए सब लोग. अगर आप जम्मू कश्मीर को देखोगे इट इज बॉर्डर बाय पाकिस्तान एंड चाइना. मिला होगा आपको. अगर आप चाइना देखोगे 5 इंडियन स्टेट से बॉर्डर करती हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन अब लद्दाख रह गया सिर्फ. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. इसी तरह से अगर आप भूटान देखोगे और नेपाल देखोगे, सिक्किम के बीच में पड़ते हैं दोनों. नेपाल 5 स्टेट से बॉर्डर करता है इंडिया के. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम. इसी तरह से भूटान देखो, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश. म्यांमार देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. If you see Myanmar also having the border of Mizoram and Tripura has the border with both Bangladesh and Myanmar. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait and Gulf of Myanmar. Pak Strait and Gulf of Myanmar. The country can be divided into 6 zones, mainly north, south, east, west, central and the northern east zone. 28 states and 9 union territory. अब अलग हो जाएगा थोड़ा सा. नहीं अभी यही हो गया 9 union territories. Then physical features, which is very important. Some geography questions are coming directly from this chapter only. The mainland comprising of 4 regions, namely Great Mountain Zone, Plain of Ganga and the Indus Desert region and Southern Peninsula. Now we can come to the page number 2, physical features. The mainland India comprising 4 regions, Great Indian Mountains, Plains, Desert and Southern Peninsula. Himalayan region comprising 3 almost parallel ranges, interspersed with large plateau and valleys, some of which like Kashmir, Kullu valleys and others. आप अपना एटलस खोलिए, मेन फिजिकल मैप. सबसे ऊपर देखिएगा ट्रांस हिमालयास जिसका कोड अल्फाबेटिकल है. काराकोरम, लद्दाख, जास्कर.
KLZ, Karakoram, Ladakh, Jaskar, all the three are the part of ट्रांस हिमालय. उसका ग्रेटर हिमालय 2400 किलोमीटर. सिंटेक्चुअल बैंड हैं दो, जहाँ से एक इंडस ब्रह्मपुत्र निकलती है. एंड दे आर मूविंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम. नो अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट्स ओनली. यूपीएससी ने यही पूछा था और इंडियन बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं. देन लेसर हिमालयस है, दे आर 4 इन नंबर. धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज, कुमाऊं एंड मसूरी रेंज. 3 स्टेट में मिलती हैं ये, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. एंड देन शिवालिक्स. शिवालिक जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है. अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम डफला, मिरी, अभोर, मिशमी है. तो एटलस खोलिए और मार्क करते जाए. देन some of the highest peak in the world is found in these ranges. The high altitude allow travel only through few passes like Jilepila and Nathula. These 2 passes are in Sikkim. सिक्किम के भी ईस्ट में मिलते हैं ये. इंडो तिब्बत ट्रेड बोल, चुम्बी वैली कॉरिडोर, इट इज सिक्किम ओनली, जहां पर हमने अभी डोकलाम इशू पढ़ा था. नॉर्थ ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग एंड शिपकला इज इन अ सतलुज वैली. नॉर्थ ईस्ट ऑफ कल्पा, दैट इज किन्नौर. The mountains wall extended over a distance of about 2400 kilometer. हाँ श्रेयस, नहीं डॉक्टर को फोन कर लो ना, वो बता देगा. हाँ. The north of Kalpa or Kinnor, the mountain wall extend over a distance of about 2400 km with a varying depth of 240 to 320 km Pitikam mains. In the east between India and Myanmar and India and Bangladesh, hill ranges are much lower. तो हाइट कम होती चली जाती है आफ्टर ब्रह्मपुत्र. इसी को बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स. यहाँ पर है नागा हिल्स. अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, नागा हिल्स, लुशाई हिल्स एंड लाइमातौल रेंजेस. गारो खासी, जैंतिया आर एंड नागा हिल्स रनिंग ऑलमोस्ट ईस्ट टू वेस्ट. बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. The plain of Ganga and the Indus, about 2400 km long and 240 to 320 km broad, form the basin of 3 distinct river, Indus, Ganga, Brahmaputra. इंडस ब्रह्मपुत्र दोनों एंटीसीडेंट है, गंगा एंटीसीडेंट नहीं है. एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो नॉर्थ ऑफ हिमालय से आती है. दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एलुवियल एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन द अर्थ. Between the Yamuna and Delhi and Bay of Bengal, entirely 1600 km away, there is a drop of 200 meter elevation. इसलिए हमारा वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंट है और ईस्टर्न कोस्ट एमर्जेंट है. देन डेजर्ट रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ग्रेट डेजर्ट एंड लिटिल डेजर्ट. पीटी एग्जामिनेशन. द ग्रेट डेजर्ट extends from edge of run of Kutch in Gujarat beyond the Luni river northward. The whole of Rajasthan Sindh frontier runs through this. The little desert extends from Luni between Jaisalmer and Jodhpur up to the northwest. PT examination. Between the great and the little desert lie a zone of absolutely sterile country consisting of rocky land and limestone ridge. इसका मतलब non fertile land. The peninsular plateau is marked off from the plain of the Ganga and Indus by a mass of mountain and hill ranges varying from 460 to 1220 meters. PT examination. Prominent among these are Aravalli ranges, Vindhya, Satpura, Mekal and Ajanta. All these ranges are moving from east to west and they are crafting the boundary between peninsular and extra peninsular, जिसमें विंध्यन रेंजेस फॉल्ट माउंटेन्स है, सतपुड़ा फोल्ड है. याद रखना 3 रिफ्ट वैली हैं भारत के अंदर. 1 इज नर्मदा, 2nd इज दामोदर एंड 3rd इज चंबल. याद रखिएगा. द पेनिनसुला इज फ्लैंक्ड ऑन द वन साइड बाय ईस्टर्न घाट्स ऑन द एलिवेशन ऑफ 610 मीटर एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन द एलिवेशन ऑफ 915 to 1120 मीटर. तो वेस्टर्न घाट्स का एवरेज हाइट ईस्टर्न घाट से ज्यादा है. वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है 6 स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. जबकि ईस्टर्न घाट सिर्फ 3 मेजर स्टेट में और डाइसेक्टेड है. 1 इज उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और दोनों मिलते हैं नीलगिरी रेंजेस पर. बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी लाई अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, while between eastern ghats and the Bay of Bengal there is a broader coastal area. The southern point of the plateau is formed by Nilgiri hills, जहां पर वो दोनों मिलती हैं. While the eastern Ghats and western Ghats meet. PT examination कई बार पूछा जा चुका है.
नाउ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब रॉक्स, बस इतना याद रख लीजिए, ऊपर लिख दीजिए इंडिया में आर्कियन रॉक सिस्टम से भी रॉक मिलता है। आर्कियन मतलब पेलाजिक रॉक सिस्टम, सबसे पुराना विच बिलोंग टू पेंजिया। तो इंडिया इज हैविंग द रॉक सिस्टम फ्रॉम द टाइम ऑफ पेंजिया। The geological region broadly follow the physical feature and may be grouped into three regions: the Himalaya and their associated group of mountain, the Indo-Gangetic Plain and Peninsular Shelf. Himalayan mountain belt to the north and the Naga-Lushai mountain in the east are the region of mountain building movement PT mains. Very very important. Naga-Lushai. Most of the area now presenting some of the most magnificent mountain scenery in the world. बाकी इसमें कुछ नहीं है. देन रिवर सिस्टम, इंडिया में 4 कैटेगरी में रिवर सिस्टम को बांटा गया: डेक्कन, कोस्टल, रिवर्स ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन जो मेनली लूनी है, एंड हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल है और पेनिनसुलर रिवर नॉन पेरेनियल है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मेनली वेस्टर्न राजस्थान में बनता है। मोस्ट ऑफ देम आर एम्पेरिकल इन करेक्टर, जो पुराने समय से बहती हुई आ रही हैं। बाकी इसमें रिवर सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं दे रखा है। नाउ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज फ्लोइंग इन द टेरिटरी ऑफ सतलुज ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत। तो हम गंगा की बात करते हैं, तो जो गंगा है उसका ओरिजिन होता है इन द फॉर्म ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। तो स्टार्टिंग में भागीरथी अलकनंदा और आखिर में जाते जाते भी ये रिवर कहलाती है हुगली एंड भागीरथी ओनली, इसलिए बोलते हैं इसको भागीरथी गंगा भागीरथी रिवर सिस्टम। देन पद्मा कंटिन्यूज ईस्टवर्ड एंटर बांग्लादेश। तो यही रिवर पद्मा बन जाती है और बांग्लादेश में चली जाती है। यमुना, रामगंगा, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, ऑल दिस आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। चंबल, बिटवा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। देन पद्मा एंड द ब्रह्मपुत्र जॉइन एट बांग्लादेश कंटिन्यू टू फ्लो एज पद्मा और गंगा। ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत राइजेस एंटीसीडेंट वेयर इट इज नोन एज सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना में सांगपो कहलाती है। देन इट एंटर्ड अरुणाचल प्रदेश बाय द नेम ऑफ दिहांग, इसका नाम दिहांग हो जाता है, ध्यान से देखिए, नियर पैसीघाट। दिबांग एंड लोहित मीट दिस दिहांग एंड आफ्टर दैट दे आर नोन एज ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र में 3 रिवर्स मिलती हैं, दिहांग, दिबांग, लोहित, एंड दे आर ड्रेनिंग द असम वैली। इट क्रॉसेज द बांग्लादेश डाउन स्ट्रीम ऑफ धुबरी। धुबरी पर ही मुड़ जाती है बांग्लादेश की तरफ। मैप पे देखते जाइएगा, मार्क करते जाएगा। प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र आर सुबनसिरी, जय भारली, धानसिरी, पुथिमारी, पागलदिया एंड मानस। पीटी एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा यहीं से उठता है चैप्टर 1 से। ब्रह्मपुत्र इज बांग्लादेश फेड बाय तिस्ता। तिस्ता रिवर बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फाइनली फॉल्स इनटू गंगा। बैराग रिवर द हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ मेघना। बैराग रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम मणिपुर। जो मेघना रिवर राइजेज इन द हिल ऑफ मणिपुर पीटी, 2 बार पूछा जा चुका है। द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इज माक्कू, तरांग, तुविरी, जिरी, सोनी, रुकी, कथकल, धालेश्वरी, माडुआ एंड अदर। तो धालेश्वरी याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बैराग कंटिन्यू इन बांग्लादेश टिल द कंबाइंड गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर नियर दैट्स द बहरी बाजार। In Deccan India, one of the major rivers are Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi, Narmada and Tapi. Godavari southern peninsula is the second largest river basin, 10% cover after Ganga. तो गोदावरी सेकंड नंबर पर आता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन दक्षिण गंगा। नेक्स्ट टू इट इज कृष्णा एंड द बेसिन ऑफ नर्मदा इन द अपलैंड ऑफ डक्कन फ्लो अरेबियन सी। एस्चुरी बनाती है नर्मदा। देन दे आर न्यूमरस कोस्टल रिवर, मेनली काली नदी इन कर्नाटका, पायस्वनी रिवर एंड सो मेनी अदर। In Goa, all the 3 rivers are west flowing river. Then there are Luni, Machu, Rupen, Saraswati, Banas and Ghaggar river which right now forming inland drainage pattern. Then the country is divided into 20 river basin group, 12 major basin and 8 composite river basin. 12 major basin के नाम याद रहने चाहिए: इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतरणी, उड़ीसा, साबरमती, Mahi, Narmada, Tapi, 20,000 square kilometer. Then 8 composite river basin 2002, 20,000 small river basin 2000. Then small river basin में आता है Subarnrekha, east flowing river, etc. Then climatic season, the climate of India are broadly described in tropical monsoon type. तो इंडिया का climatic type है tropical monsoon type, जो यूपीएससी में कभी भी पूछा जा सकता है। IMD 4 ऑफिशियल सीजन की बात करता है: विंटर दिसंबर टू अप्रैल, जो अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ तब तक विंटर था। कोल्डेस्ट मंथ आर दिसंबर एंड जनवरी, टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। देन समर और प्री मानसून अप्रैल टू जून तक चलेगा, अप्रैल टू जून, एंड देन इट इज वेरी ड्राई, टेम्परेचर एवरेज 32 to 40 डिग्री।
Monsoon rainy season June to September, season dominated by the humid southwest summer monsoon, and post monsoon season October to December. PT cum means. हिमालय स्टेट विंग मोर टेम्परेट एक्सपीरियंस टू एडिशनल सीजन ऑटम एंड स्प्रिंग. तो हिमालय में 2 सीजन और आते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग. ट्रेडिशनली इंडिया नोट 6 सीजन, 2 month long. Then flora, India is a rich flora available. Data of the India in 10th position in the world and 4th in the Asia in the plant diversity PT examination, 10th and 4th. 70% geographical area surveyed so far, over 46,000 species of plant have been described by the Botanical Survey of India, Kolkata PT examination. Then नीचे वेस्टर्न हिमालयस रीजन एक्सटेंड टू फ्रॉम कश्मीर टू कुमाऊं. कश्मीर से कुमाऊं तक जाता है वेस्टर्न हिमालयस. They are having good amount of species of chir pine, conifers, broadleaf, temperate forest. On the higher side, deodar, blue pine, spruce and silver fir ये भी मिलता है. Alpine zone started after 4750 meter PT examination. The characteristics tree of this zone are high level silver fir, silver birch and juniper. सबसे ऊपर मिलते हैं silver fir. PT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. The eastern Himalayan region extends from Sikkim eastward and embraces Darjeeling, Kurseong and adjacent facts. The temperate zone has forest of oak, laurel, maple, rhododendrons and other PT cum means. याद रखिएगा ये. Many conifer, junipers and dwarf willows also grow here. The Assam region comprising the Brahmaputra Surma Valley. Assam basin में Brahmaputra Surma Valley है. With evergreen forest. तो ईस्टर्न हिमालयस में evergreen forest मिलते हैं. The Indus Plain region comprising of Punjab, Western Himalayas and Gujarat. And they are supporting dry, hot and natural vegetation known as xerophytic vegetation. गंगा प्लेन में कोई वेजिटेशन नहीं है बिकॉज हियर कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, शुगर केन एंड राइस. ओनली स्मॉल एरिया सपोर्टेड वाइडली डिफरेंट. एंड डेक्कन रीजन कंप्राइजिंग ऑफ एंटायर टेबल लैंड विद सपोर्ट मेनली डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो यहाँ पर मेनली कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं आपके? डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड फ्रॉम श्रब जंगल्स टू मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट. बाकी यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स होती है, कोकोनट, बीटलनट, पीपर, कॉफी, टी, रबर एंड कैश्यू नट बिकॉज ऑफ एसिडिक सॉइल. अंडमान रीजन अबाउंड इन एवरग्रीन मैंग्रोव. तो अंडमान निकोबार में एवरग्रीन. तो एवरग्रीन अब 3 जगह मिलते हैं. तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हमारे हैं वो 3 जगह मिलते हैं. वन इज ईस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा कोस्ट एंड अंडमान निकोबार. देन हिमालय रीजन एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश थ्रू सिक्किम, मेघालय, नागालैंड एंड डेक्कन पेनिनसुला. द फ्लोरा ऑफ द कंट्री इज बीन स्टडी बाय बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और यही हमारा रेड डाटा बुक निकालता है रिगार्डिंग that is fauna, sorry that is flora. Now after flora, faunal मतलब animals. India is having the great diversity of animals. India is a part of biogeographical region that is Palearctic and Indo-Malaya and tropical humid and tropical dry deciduous. These are the 3 biomes. तो इंडिया के अंदर वी आर हैविंग सो मेनी बायोजोग्राफिकल रीजन 10. 2 मेजर रियल्स हमारे पैलियार्टिक, इंडोमलाया जिसी को बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं. एंड 3 बायोमास हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल ड्राई एंड वार्म, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट. मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी इसमें जो थोड़ा बहुत बता रखा है दैट इज इंडिया में 2% वर्ल्ड का एरिया है और इंडिया इज नोन फॉर 7.5% ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. देन डेमोग्राफी आ जाता है. तो 2011 में 15 सेंसस हुआ. तो इसको आप पढ़ेंगे. 15 सेंसस 1872. इट वाज हेल्ड इन 2 फेजेस, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस एंड पॉपुलेशन इनुमरेशन. मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा. इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है. 2.4% अब वर्ल्ड का एरिया है एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड में हाईएस्ट है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर. और हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट 17.72 है. देन सेक्स रेशियो इंडिया में इंप्रूव हुई है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कमजोर हुई है. लिटरेसी भी इंप्रूव हुई है बट मैन लिटरेसी इज मोर देन वुमेन लिटरेसी. केरला रिटेन हाईएस्ट लिटरेसी लेवल, लक्षद्वीप यूटी में 91.5%, लोएस्ट है बिहार की. तो दीज आर सम ऑफ द पार्ट, क्योंकि सेंसस बहुत पुराना हो गया, नाउ इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. सेकंड चैप्टर बड़ा इजी है. नेशनल फ्लैग सीधा पढ़ेंगे. नेशनल फ्लैग शेल बी ट्राई कलर पैनल मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगुलर. सबसे ऊपर केसरिया, देन व्हाइट एंड देन ग्रीन. अशोक चक्र 24 इक्वल बोस. कुछ मेन चीजें याद रखनी है, खाली रेशियो याद रखना है, 3:2, 1:3:2. नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947. सीधा पीटी में क्वेश्चन आता है. पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया. देन स्टेट एम्बलम. स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम लोएन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ पीटी.
आल्सो नोन एज लोयन कैपिटल, 4 लोयंस है लेकिन 3 विजिबल रहते हैं। एबस्कस स्कल्पचर इज हाइट, 3 एलिफेंट इसमें दिखते हैं, 3 जानवर, सॉरी एलिफेंट नहीं, एलिफेंट, गलोपिंग हॉर्स एंड बुल, पीटी एग्जामिनेशन। बीच में धर्म चक्र है, एबस्कस है और उसमें बेल शेप्ड लोटस है, पीटी में सीधा क्वेश्चन आता है। फिर हम लोगों ने सत्यमेव जयते लिया है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ, देवनागरिक स्क्रिप्ट में। स्टेट एम्बलम लाइज इन द ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की ऑफिशियल सील है। प्रोटेक्टेड अंडर स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन इन प्रॉपर यूज एक्ट 2005, बच्चे याद रखेंगे। देन स्टेट एम्बलम है, देन नेशनल एंथम जनगण मन, सबसे पहले बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। हिंदी वर्जन अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 में आफ्टर आज़ादी। इट वॉज फर्स्ट संग इन 1911 पीटी एग्जामिनेशन, पहली बार 1911 27 दिसंबर में गाया गया था नेशनल कांग्रेस में। 5 स्टंजा हैं पूरे नेशनल एंथम के अंदर। द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन नेशनल एंथम इज 52 सेकेंड और स्मॉल वर्जन 20 सेकेंड। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, बंकिंगम चटर्जी, मुंडकम उपनिषद, याद रख लेना यहाँ पर मुंडकम उपनिषद। जनगण मन जैसा स्टेटस है, नेशनल मूवमेंट को इसने बूस्टअप किया था, पहली बार 1896 में गाया गया था इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन नेशनल कैलेंडर, यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आया। नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन सका एरा पीटी एग्जामिनेशन विद चैत्रा इज द फर्स्ट मंथ एंड अ नॉर्मल ईयर ऑफ 365 days, adopted from 22nd March 1957 PT examination, but for the official purpose ग्रिगोरियन कैलेंडर हमने अडॉप्ट किया गेजेट ऑफ इंडिया के लिए, अदर के लिए। डेट ऑफ नेशनल कैलेंडर हैव अ परमानेंट करस्पॉन्डेंस विद द डेट्स ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर, फर्स्ट चैत्रा फॉलिंग ऑन 22nd of March। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर 1-2 आपको अच्छे लगे होंगे। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। स्टे कनेक्टेड, वर्क हार्ड, अगेन वी विल कम विद इंडस्ट्री चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।